What we have covered? Business process. What is business process? What are the categories of business process? See, what are the categories of business process? Operational process, supporting process, and management process. Then we have seen what is business process re-engineering, what is business process automation, that is BPR, BPA, TQM, total quality management. Okay. Then in total quality management, we have seen कि principles क्या है, it is based on which cycle. TQM is based on PDCA cycle, plan, do, check, act. Okay. Then we have seen what is BPM, business process management, what is Six Sigma. Okay. So today we are going to revise it again, Six Sigma, this concept. Okay. Six Sigma, we are going to revise it. Six Sigma का main, what is the main goal of Six Sigma? Delivering tomorrow's performance today. Tomorrow's performance today. Okay. Delivering tomorrow's performance today means if you want to deliver a good quality product to the customer, तो तुमको क्या करना है? You have to focus on today's activities. You have to focus on today's activities. ठीक है? इसका मीनिंग होता है delivering tomorrow's performance today. Today means you have to focus on the today's activities for the future, or you can say for the tomorrow's performance. So always tomorrow's performance जो है वो based होता है current activities पे. Okay. Now see what is sigma. Six sigma लिखा है ना, तो what is the meaning of sigma? See, sigma means, सिग्मा का मीनिंग ये है, अ ग्रीक टर्म यूज इन स्टैटिस्टिक्स टू रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू. ये एक ग्रीक टर्म है. सिग्मा इज अ ग्रीक टर्म यूज इन स्टैटिस्टिक्स. सी स्टैटिस्टिक्स मींस मैथमेटिकल वैल्यूज लाइक मीन, मीडियन और एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ओके. तो स्टैटिस्टिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा क्या है? इट इज यूज इन स्टैटिस्टिक्स. सिग्मा कहाँ पे यूज होता है? Sigma is a term used for the statistics. ठीक है, एक ग्रीक टर्म है for statistics. Sigma is a Greek term used in statistics to represent standard deviation from mean value. जो mean value है कोई भी सर्विस का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हम लोग को. स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम mean value, an indicator of the degree of variation in a set of process. So degree of variation means how the actual performance predicted and actual performance, what is the deviation between the actual and the predicted. ठीक है, मतलब कितना डिफरेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे. तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? बाय डूइंग दी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से होगा. ओके. सिग्मा एक ग्रीक टर्म है यूज इन स्टैटिस्टिक्स to identify the variation, to identify the degree of variation. Sigma measures how far a given process deviates from perfection. Sigma means हम लोग statistics use कर रहे हैं, so we can identify कि जो तुम्हारा प्रोसेस है वो कितना परफेक्शन से डेविएट कर रहा है, मतलब how much it is lacking from perfection. Okay. सिग्मा से we can measure. Sigma means statistics. Okay. So we can measure how far a given process deviates from the perfection. Okay. Now see what is Six Sigma. Six Sigma. Okay. Six Sigma is not a कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एक सर्टिफिकेशन, अनदर मेट्रिक लाइक परसेंटेज. सिग्मा हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सिक्स सिग्मा कोई एक स्टैंडर्ड है, कोई ब्रांड का नाम है, कोई सर्टिफिकेशन का नाम है, या कोई मैट्रिक लाइक परसेंटेज मींस कोई स्टैटिक्स या मीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इसका बेसिक मीनिंग ये नहीं है सिक्स सिग्मा का. रेदर सिक्स सिग्मा क्या है? इफ यू आर सेइंग सिक्स सिग्मा, वी आर अप्लाइंग सिक्स सिग्मा ऑन दिस पर्टिकुलर सर्विस. इसका मीनिंग ये हुआ कि वी आर फोकसिंग ऑन दी एक क्वालिटी फिलोसॉफी है ये. सिक्स सिग्मा क्या? इट इज अ क्वालिटी फिलोसॉफी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस. सिक्स सिग्मा का मेन गोल क्या है?
Main goal of Six Sigma is to improve the performance of the service by knowing where you are and where you could be. Means at present where you are and what the actual performance you want. वो कैसे पता चलेगा? At present where we are and what is the what desired results we want. Okay. तो ये दोनों के बीच में जो डेविएशन है वो कैसे पता चलेगा? By applying the statistics. Okay. So now Six Sigma हम लोग बोल सकते हैं it is a quality philosophy for improving the performance of the service. If you are measuring the service in Six Sigma, what we are doing, we are applying the statistics value. That means we are measuring the service. Measuring the service means we can identify how much we are deviating from the actual performance. Okay. Then it is a method to measure and improve the service. क्या कर एक measure है Six Sigma to measure the performance of the service. To measure the performance of the service. Okay. Now see why Six Sigma. Okay, why we have to use the Six Sigma? See, if you're using the Six Sigma means it is a quality philosophy to improve the performance of the service. Okay, so why we have to use? Because what we have to do, we have to increase the profit of the business. क्या करना है हम लोग को? We have to increase the profit of the business by eliminating defects. Defects eliminate करना है, profit increase करना है business का. Okay, so that's why we have to use Six Sigma because Six Sigma में क्या है? Statistics है. Sigma means statistics. Okay, we are measuring the quality of the service, we are measuring the, or you can say, performance of the service, and we are checking also what is the deviation between the current service, how much it is deviating from the current service and the result we want. Okay, कितना उसमें deviate कर रहा है. So the current business environment now demands and rewards innovation more than ever before due to कि जो current business environment है, now it is demanding, क्या demand कर रहा है वो? Now demands and rewards innovation. They want rewards innovation or demands. क्यों? Because see customer का expectations change और according to the market value, or you can say latest technology. Because of different technologies are coming into the market, customer expectations are changing. Okay, so customer expectations, technological change, technology is also changing. Okay, day to day life mein what technology goes on changing. Okay, different technology is coming into the market, then competition increases automatically if technology changes. अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो तो कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा. देन मार्केट इज फ्रेगमेंटेशन मींस dividing anything into small pieces. Okay, the market fragmentation because market is divided into different sectors. एक जो मार्केट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है. तो सी करंट बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, करंट बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सब चेंज हो रहा है. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ग्लोबल कंपटीशन और मार्केट फ्रेगमेंटेशन. इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? वी शुड यूज सिक्स सिग्मा. दैट इज द रीजन क्यों यूज करना है, बिकॉज हम लोग सिग्मा में स्टैटिस्टिक्स वैल्यू यूज करते हैं तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस मेजर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसका मेजरमेंट, कंपटीशन का मेजरमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन का. ये सब हम लोग क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं फिर यूजिंग दी सिक्स सिग्मा. नाउ सी व्हाट आर द कंपनीज दैट आर यूजिंग दी सिक्स सिग्मा. कौन सी कंपनीज ऐसी है जो सिक्स सिग्मा यूज कर रही है? सी मोटोरोला कंपनी, सिटी बैंक, एरिक्सन, जनरल इलेक्ट्रिक, फोर्ड मोटर, सिटी बैंक. These are the companies that are using the Six Sigma. So Six Sigma is in use in virtually all industries around the world. Means in almost all the companies, Six Sigma जो है वो यूज हो रहा है. And these are the some of the list are given here. Okay, companies which are using Six Sigma. Six Sigma क्या? It is a quality philosophy. It is a quality philosophy because we are focusing on how we can improve the quality of the service
by using the statistics because we are measuring. क्या मेजर कर रहे हैं कि करंट कहाँ पे है और एक्चुअल कहाँ पे तुमको पहुंचना है. ओके, वेयर यू वांट टू बी एंड वेयर यू आर करंटली, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी. ओके, उससे तुम कितना डेविएट करो, कितना लैक कर रहे हो, तो वो मेजर करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फोकस ऑन दैट पार्ट. ओके, सी नाउ व्हाट इज इट, what is written here, Six Sigma जो है, it takes money to save money. See, Six Sigma is a quality philosophy to improve the quality of the service, right? Focus कहाँ पे, quality पे है. So if you want to improve the quality of the service, we have to invest some money. क्या करना है, कुछ मनी इन्वेस्ट करना होगा टू सेव मनी. इफ यू वांट टू गेन प्रॉफिट, सेव मनी मीन्स प्रॉफिट चाहिए तुमको, प्रॉफिट मिलेगा तो मनी सेव होगा, राइट? So if you want to gain profit, if you want to save money, you have to invest it. ये कुछ मनी तुमको इन्वेस्ट करना होगा, then only you can save it. तो ये ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज सी, सिक्स सिग्मा जो है हम लोग अप्लाई करते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में. बीपीएमएस, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम. कहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है? बीपीएम में. अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन दिस बीपीएम प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट टेक्स मनी. तो मनी कहाँ पे लगेगा? बीपीएम में लगेगा, मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में इट टेक्स मनी. और सेविंग कहाँ पे हो सकता है? सिक्स सिग्मा में हो सकता है, क्वालिटी पार्ट पे फोकस करने के बाद. समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्यों लिखा है? इट टेक्स मनी टू सेव मनी. टेक्स मनी मीन्स बीपीएम जो है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम. बिजनेस प्रोसेस में कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज होगा, उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? और सेव कहाँ पे होगा? अगर यहाँ पे तुम प्रॉपर मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, देन सेविंग पार्ट हम लोग कहाँ पे फोकस कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग सिक्स सिग्मा. ओके, सिक्स सिग्मा ऑन दैट प्रोसेस. Now the explanation is given here. What is BPMS, Business Process Management System? क्या होता है? Okay, what is BPM? What is BP? Can anyone answer what is BPM? Business Process Management. See, Business Process Management. See the second point. Combining BPM strategies with Six Sigma is most powerful way to improve performance. क्या कंबाइन कर रहे हैं? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को अगर हम कंबाइन करते हैं सिक्स सिग्मा के साथ में, तो एक बहुत, इट इज द मोस्ट पावरफुल वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. बिकॉज सी, बीपीएम के व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजीज क्या होगा? कैन एनीवन आंसर? व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ बीपीएम? कि सिंपली मीनिंग ये है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स तुमको मैनेज कर, यू वांट टू मैनेज दी प्रोसेसेस विच इज इन्वॉल्व इन बिजनेस. प्रोसेस मैनेज करना है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, प्रोसेस विच यू आर यूजिंग इन द बिजनेस, उसको मैनेज करना है. तो कैसे मैनेज होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट? हाउ इट इज डन? प्लानिंग करना. बीपीएम लाइफ साइकिल याद आ रहा है क्या? बीपीएम लाइफ साइकिल क्या फेज था? बीपीएम लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज प्लानिंग. See this PPT. BPM क्या है? Business Process Management Systematic Approach that is used to make an organization's workflow effective, efficient and responsive to changing environment. एक systematic approach है BPM. ठीक है, systematic approach means ये steps follow करते हैं हम लोग business manage करने के लिए. Life cycle step, analysis phase, design phase, implementation, run and monitor, optimizing. कुछ याद आ रहा है? सी, अभी यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं हम लोग बीपीएम स्ट्रेटेजीज, इफ यू आर कंबाइनिंग बीपीएम स्ट्रेटेजीज विद सिक्स सिग्मा, इट इज द मोस्ट पावरफुल वे टू इंप्रूव परफॉर्मेंस.
So means अगर if you are focusing on this phase, BPM strategies means if you are focusing on the BPM life cycle, ठीक है, तो BPM strategies के phase को plus Six Sigma combine करेंगे तो we can improve the quality. तो ये एनालिसिस है बीपीएम लाइफ साइकिल में. एनालिसिस फेज में हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पे फोकस करते हैं. क्वालिटेटिव वैल्यू और क्वांटिटेटिव दोनों आइडेंटिफाई करते हैं. डिजाइन फेज में एसएलए पे फोकस करते हैं. व्हाट इज एसएलए? सर्विस लेवल एग्रीमेंट. एसएलए मीन सर्विस लेवल एग्रीमेंट. व्हाट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट? Agreement between IT service provider and the customer is called as service level agreement. Everyone note down this. What is service level agreement? Agreement between IT service provider and the customer is called as service level agreement. So while you're designing the service, तो डिजाइन के टाइम पे यू हैव टू फोकस ऑन, क्या फोकस करना है? सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, वो ध्यान में रख के ही वी हैव टू डिजाइन दी सर्विस. इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट दी सर्विस. कैसे सर्विस को इम्प्लीमेंट करें, कैसे सर्विस को टेस्ट करें, हाउ वी कैन डिलीवर दी सर्विस टू दी कस्टमर, ये फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज में. ठीक है. देन वी आर टेस्टिंग दी सर्विस, रन करके देखते हैं हम लोग, वी आर टेस्टिंग दी सर्विस. देन वी आर मॉनिटरिंग ऑल्सो. मॉनिटरिंग मीन्स वी आर मॉनिटरिंग लाइक एनी रिस्क इज अकरिंग और नॉट, ये मॉनिटर हुआ. देन ऑप्टिमाइजिंग मीन्स, ऑप्टिमाइजिंग में क्या होता है? वी आर फोकसिंग ऑन CSI मीन्स continuous service improvement. Everyone note down these keywords, continuous service improvement. ऑप्टिमाइजिंग फेज में CSI पे फोकस होता है. CSI पे फोकस होता है मीन्स if you are delivering any service to the customer, तो सर्विस जो है, सर्विस should not stop at one stage. सर्विस जो है, सर्विस शुड नॉट स्टॉप एट वन फेज मीन्स सर्विस का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअस बेस पे इम्प्रूव होना चाहिए. कंटिन्यूअस सर्विस इम्प्रूवमेंट. लाइक सी, अगर तुमने कोई सर्विस डिलीवर कर दी है तो तुम्हारा ड्यूटी ओवर हो गया? नहीं. क्या करना चाहिए? वो सर्विस में हमको देखना चाहिए कि लेटर ऑन उसमें हम लोग कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं क्या? इधर एनी इश्यूज और एनी एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व इट. क्या मोर बेटर कर सकते हैं हम लोग सर्विस को नेक्स्ट लाइफ साइकिल में, नेक्स्ट फेज में. ओके. तो कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट पे हमेशा फोकस करना है. इसका डे टू डे लाइफ में एग्जांपल, मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लो. कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितने वर्जन नंबर, पहले 8 था फिर 9, मतलब लेट अस कंसीडर 8 9 10 11, मतलब वर्जन नंबर कैसे चेंज हो रहे हैं मोबाइल के. ठीक है. अभी वर्जन नंबर चेंज हो रहा है मीन्स कुछ फीचर्स उसमें ऐड हो रहा है. ठीक है. अभी ये बात तुमको पता होगा, जो वर्जन 11 वाले फोन है, मोस्ट ऑफ द फोन जिसके वर्जन 11 है, वर्जन समझ रहे हो ना? अपने फोन का वर्जन नंबर चेक करो, सबको आता होगा. अबाउट में जाके यू कैन चेक द वर्जन नंबर ऑफ योर फोन. ठीक है. तो जितने भी मोस्ट ऑफ द फोन जिसके वर्जन 11 है उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है. इनबिल्ट रिकॉर्डिंग इज नॉट देयर. ओके. आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स. मीनिंग ये है एक्सप्लेन करने का कि कंटिन्यूस सर्विस इंप्रूवमेंट मीन सर्विस जब तुम एक डिलीवर कर देते हो तो योर ड्यूटी इज नॉट ओवर. सर्विस प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूटी वहीं पे एंड नहीं होता है. दे आर फोकसिंग ऑन हाउ लेटर ऑन वी कैन डू दी इम्प्रूवमेंट इन दी सर्विस. ठीक है. इफ देर आर एनी इश्यूज और बग्स कैन बी आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू और एरर्स. ठीक है. तो ये सब क्या हुआ, इसका मीनिंग है वी आर फोकसिंग ऑन कंटिन्यूस सर्विस इंप्रूवमेंट. अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है या कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहे हैं, कस्टमर्स वांट दिस टाइप ऑफ फीचर्स. ठीक है. तो अभी देखो व्हाट्सएप में भी कुछ फीचर्स है, 24 आवर्स तक स्टेटस रहेगा. तो ये सब क्या है? लेटर ऑन वो चेंज भी हो सकता है. कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट, जो यूजर्स है उनके रिक्वायरमेंट अगर चेंज होते हैं. ठीक है. बिकॉज कॉम्पिटिशन, व्हाट्सएप जो है वो कंपटीशन कर रहा है, फेसबुक से कर रहा है और कोई अदर सोशल नेटवर्किंग साइट से दे आर डूइंग द कंपटीशन. So because of competition only they are focusing on continuous service improvement. Okay. तो ये कुछ फेज है, लाइक बी
बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के। मीन्स कोई भी बिजनेस के प्रोसेस जो है उसको कैसे मैनेज करोगे तुम, अगर ये स्टेप पे फोकस करते हो, एनालिसिस पे, डिजाइन पे, इम्प्लीमेंटेशन, रन एंड मॉनिटर और ऑप्टिमाइजिंग। एनी डाउट इन दिस? नो मैम। What does it stands for? SLA, SLA, SLA stands for, सर्विस लेवल मैनेजमेंट मैम। सर्विस लेवल everyone एग्रीमेंट। reply, सर्विस लेवल सर्विस एग्रीमेंट। LA, एग्रीमेंट। full सर्विस लेवल form, एग्रीमेंट मैम। everyone reply in the chat box. SLA stands for, service level agreement. Service level agreement. Agreement between whom? Agreement between whom? किस किस के बीच में एग्रीमेंट है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन, एग्रीमेंट बिटवीन IT सर्विस यस प्रोवाइडर राइट, एंड एसएलए क्लाइंट। स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो कैसे एग्रीमेंट है ये, किसके बीच में होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट? एग्रीमेंट बिटवीन, यस राइट रिजवाना, आईटी सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। एग्रीमेंट बिटवीन आईटी सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। आईटी सर्विस प्रोवाइडर मीन, सर्विस प्रोवाइडर का मीन, सर्विस प्रोवाइडर का मीनिंग क्या है? द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर वही है ना, द पर्सन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। So the agreement between IT service provider, the agreement between, or you can say service provider, agreement between service provider and customer is called as SLA. Okay. So these, don't forget this, huh? BPM life cycle stages: analysis, designing, implementation, run and monitor, optimizing. So see this. So if you are combining both BPM and the Six Sigma, so it is the most powerful way to improve the performance. ये क्या है? सी फेजेस ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा में DMAIC क्या फेजेस है सिक्स सिग्मा के? याद करो, हाँ कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है फेजेस ऑफ सिक्स सिग्मा का? कीवर्ड क्या है? DMAIC। एग्जाम में आ सकता है DMA। व्हाट इज DMAIC? तो ये क्या है? फेजेस ऑफ सिक्स सिग्मा है DMAIC। ओके, और फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। DMAIC। ऐसा याद नहीं कर सकते DCI। स्टेप पे ये मतलब फर्स्ट डिफाइन ही होना चाहिए, सेकंड मेजर होना चाहिए, ऐसा सिक्वेंशियली। ठीक है, सिक्वेंशियल स्टेप्स है ये। का फ्लो दिख रहा है कैसे जा रहा है? D से M पे एरो मार्क, सीधी एरो राइट हैंड साइड से लेना है। DMAIC। okay, so these are the phases of Six Sigma. Define में you're defining the goal. ठीक है, गोल डिफाइन कर रहे। See, if you want to apply Six Sigma means, if you want to apply Six Sigma means if you want to improve the quality of the service, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? पहले first you have to define what is the goal, which part you want to change, which new features you want to add, what are the errors. तुमको अपने सर्विस को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, what is the goal, क्या तुम्हारा गोल है? what are the customers requirement, ये सब डेफिनेशन में आ जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन दी सर्विस। डायरेक्टली यू कांट जंप इनटू द क्वालिटी इंप्रूवमेंट पार्ट। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ उसके स्टेप्स होंगे ना। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यू टू डिफाइन दी सर्विस। डिफाइन करने के टाइम पे यू विल सी कि तुमको व्हाट इज द वारंटी ऑफ दी सर्विस। ठीक है,
what are the tangible or intangible assets, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, तो ये सब डिफाइन करना हुआ सर्विस को। देन यू आर सेकेंड स्टेप पे डिफाइन करने के बाद यू विल मेजर दी सर्विस। क्यों मेजर करेंगे? ताकि मेजर रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। इफ यू आर मेजरिंग द सर्विस यू विल आइडेंटिफाई के व्हाट आर द डिफेक्ट्स, व्हाट आर द एरर्स इन द सर्विस। देन एनालाइज, एनालाइज में तुमको पता चलेगा, यू कैन आइडेंटिफाई द कॉज, क्या प्रॉब्लम का रीजन क्या है, फ्रॉम वेयर प्रॉब्लम अराइजेस, ठीक है, कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुआ, वो एनालाइज फेज में पता चलेगा। देन पता चल गया मुझे रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एनालाइज फेज में वी हैव आइडेंटिफाइड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, then we can focus on the improvement part. How we can focus on the improvement part? By applying some statistics, by applying some statistical value, ठीक है, so we can improve the performance. Statistics apply करना means we are measuring where we are and where we want to be, where we are and where we want to be, okay. तो उसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके स्टैटिस्टिकल वैल्यू वी आर अप्लाइंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट पार्ट, ठीक है। इम्प्रूव होने के बाद कंट्रोल करना है, कंट्रोल लास्ट स्टेप। क्या कंट्रोल करना है? तुमने इम्प्रूव तो कर दिए, बट कंट्रोल में ये करना है, कंट्रोल प्रोसेस टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स। इम्प्रूव होने के बाद तुमको ये मॉनिटर करना है कि जो डिफेक्ट्स है वो क्या होना चाहिए, अनप्रेडिक्टेड डिफेक्ट्स जो है वो इजीली कंट्रोल होना चाहिए। जो अनप्रिडिक्टेबल डिफेक्ट्स है, इनकेस ऐसा भी होता है कि अनप्रिडिक्टेबल डिफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं इम्प्रूवमेंट के बाद भी, so that you have to control unpredictable defects, ओके। तो वो जो अनप्रेडिक्टेबल डिफेक्ट्स है ये सब कैसे सॉल्व होगा, दे आर हाउ दे आर सॉल्विंग इट ऑर्गेनाइजेशन। सी जो कुछ पॉलिसी होते हैं सर्विस के, लाइक यू कैन से वारंटी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी ओनली। वारंटी जो है, तो बाय लुकिंग एट द वारंटी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है उसके अकॉर्डिंगली दे आर कंट्रोलिंग द सर्विस। वारंटी में अगर 5 इयर्स का वारंटी है तो 5 इयर्स तक व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू कंट्रोल मिनिमाइज द डिफेक्ट्स, जो भी पॉलिसी में लिखा होगा, ओके। तो ये दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट, क्या करना है, DMAIC क्या है, फेजेस ऑफ सिक्स सिग्मा। Okay, students, only less than 1 minute is remaining. We will continue in the next lecture. So this PPT I will upload Six Sigma, TQM, BPR, BPM. Okay. So then bye everyone. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.